નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 વિષય હિન્દી, દ્વિતીય ભાષા, કૃતિ 18 અંધેરી નગરી, જેનું સાહિત્ય સ્વરૂપ છે એકાંકી અને એના સર્જક છે ભારતેન્દુ હરિશ્ચંદ્ર. આ ભારતેન્દુ હરિશ્ચંદ્ર એ આધુનિક હિન્દી સાહિત્યના પિતામહ તરીકે હિન્દીમાં ઓળખાય છે અને એમણે આધુનિકતાની સાથે ઘણી બધી અનેક એવી કૃતિઓની પણ રચના કરી છે. પણ આજે આપણે એમના વિશે વિશેષ પરિચય ન મેળવતા. આ જે કૃતિ છે અંધેરી નગરી, વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને જણાવી દઉં કે જ્યારે હું નાનો હતો ત્યારે આ જે કૃતિ છે એને મેં એવી રીતે સાંભળેલી કે અંધેરી નગરી અને ગંડુ રાજા, ટકે શેર ભાજી અને ટકે શેર ખાજા. તો આ ગંડુ રાજા એ અહીં ચૌપટ રાજાના સ્વરૂપમાં આપણી પાસે આવે છે. એટલે એવું બને છે કે ભાઈ આ એકાંકીમાં એક મહંત છે, એમના બે શિષ્ય છે અને આ મહંત અને એમના બે શિષ્યો જ્યારે અંધેરી નગરીમાં પહોંચે છે, જ્યાં એક મૂર્ખ રાજા અને મૂર્ખ પ્રજા એની સાથે એનો પનારો પડે છે અને આખી નગરીમાં બધે જાણે કે અજ્ઞાન અને અંધકાર જ છે અને રાજામાં પણ કંઈ અનુશાસન એટલે કે શિસ્ત નથી, કંઈ વિવેક જ્ઞાન નથી અને પ્રજામાંય નથી. એટલે એનાથી શું થાય છે એની વાત આ એકાંકીની અંદર કરવામાં આવી છે. અને આ એકાંકી એ આપણી ગુજરાતી વાર્તા અંધેરી નગરી અને ગંડુ રાજા, ટકે શેર ભાજી અને ટકે શેર ખાજા એના જેવી જ છે, ખાલી ગંડુ રાજાની જગ્યાએ ચૌપટ રાજા એવો શબ્દ વાપર્યો છે. તો આ જે કૃતિ છે એમાં કુલ 5 આમ તો મુખ્ય જે પાત્રો છે એ 4 પાત્રો મુખ્ય છે ને બાકીના જે પાત્રો છે એ ગૌણ પાત્રો છે. જેમ કે મુખ્ય પાત્ર છે મહંતનું, એના પછી નારાયણદાસ એટલે મહંતનો એક શિષ્ય, ગોવર્ધનદાસ મહંતનો બીજો શિષ્ય અને ચૌપટ રાજા જે છે તે અંધેરી નગરીનો રાજા છે. આ સિવાય કુંજડીન, હલવાહી, ફરિયાદી, કલ્લુ બનિયા, કારીગર, ચૂનેવાલા, ભિસ્તી, કસાઈ, ગડરિયા, કોતવાલ, સિપાહી વગેરે છે. એટલે કે આજે આ એકાંકી છે એ એકાંકી દ્રશ્યોમાં વિભાજિત છે અને અહીં કુલ 3 દ્રશ્યો આપવામાં આવ્યા છે. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એકાંકી હું તમારી સામે જુદા જુદા આરોહ અવરોહ અને અવાજ સાથે રજૂ કરવાનો છું. એટલે કે જેવી શૈલી છે, ડાયલોગ છે, એ પ્રમાણે હું આ કૃતિને તમારી સામે માત્ર વાંચવાનો છું. જે વર્ષો પહેલાં રેડિયો રૂપકો આવતા હતા, ચંદ્રકાંત બક્ષીએ, ચંચી મહેતાએ શરૂ કરેલા હતા અને દિલ્હી વિવિધ ભારતી જે છે ત્યાંથી પણ આવા રેડિયો નાટકો આવતા હતા. બસ એની જેમ જ આ નાટક એ હું તમારી સામે પઠન કરવાનો છું. તો પહેલા દૃશ્ય, સ્થાન है शहर से बाहर सड़क, महंत जी और 2 चेले बातें कर रहे हैं. महंत कह रहा है, बच्चा नारायणदास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है. देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे और क्या. तब नारायणदास कहता है, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो. बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायणदास पूर्व की ओर जाएगा. तब गोवर्धन दास जाता है. गोवर्धन दास जब कुंजड़िन यानी कि सब्जी बेचने वाली स्त्री इससे कहता है, क्यों भाजी क्या भाव. कुंजड़िन कहती है, बाबा जी टके शेर. गोवर्धन दास कहता है, सब भाजी टके शेर, वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ें टके शेर. जब वह हलवाई के पास जाता है और वहाँ जाकर कहता है, क्यों भाई मिठाई क्या भाव. हलवाई कहता है, टके शेर.
गोवर्धन दास सोचने लगता है, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके सिर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? तब हलवाई कहता है, अंधेरी नगरी। और गोवर्धन दास कहता है, और राजा का नाम क्या है? हलवाई कहता है, चौपट राजा। गोवर्धन दास मन ही मन में, वाह वाह, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। हलवाई कहता है, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले ले। गोवर्धन दास कहता है, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसा लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। इस बार इस और महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत कहता है, बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। तब गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। बच्चा कहता है, महंत कहते हैं, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है? गोवर्धन दास कहता है, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तब महंत कहता है, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी, मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊँगा, और जगह जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यही रहूँगा। महंत कहता है, देख भाई, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। यह कहते हुए महंत चले जाते हैं। यहाँ छात्र आपसे निवेदन है कि यह पहला दृश्य जो है वह पहला दृश्य पूरा होता है। अब दूसरे दृश्य में क्या आता है? दूसरे दृश्य में राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है का शब्द होता है। राजा कहता है, कौन चिल्लाता है, जरा बुलाओ तो। 2 नौकर एक फरियादी को लाते हैं। फरियादी कहता है, दुहाई महाराज, दुहाई। राजा कहते हैं, बोलो क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी इसके नीचे दब गई, न्याय हो। राजा कहता है, कल्लू को पकड़ कर लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्या हो रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई? महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। अच्छा, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। तब राजा कहता है, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर कहता है, महाराज, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा कहता है, अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाले को पकड़ कर लाया जाता है। और अब राजा पूछता है, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला कहता है, महाराज, बिश्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। अच्छा, तो बिश्ती को पकड़ लो। बिश्ती यानी पानी की हेरा फेरी करने वाला। जैसे गुजराती में एक वार्ता है ना, जूमो बिश्ती, बस वैसा ही बिश्ती जो
पानी की मशक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और पैसे देकर यह काम करता है। जैसे अभी इस हमारे ज़माने में टैंकर, ट्रैक्टर से टैंकर जो आता है, वैसे पुराने ज़माने में बिस्ती था। तो बिस्ती को लाया जाता है। क्यों रे बिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई? महाराज, इस गुलाम का कोई कसूर नहीं। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। हाँ, तब राजा कहता है, अच्छा, बिस्ती को निकालो, कसाई को लाओ। नौकर बिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? महाराज, गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। जब कसाई को एक भेड़ यानी कि घेटું, મોટું ઘેટું એને વેચ્યું અને એના ચામડામાંથી મોટી મશક બની। अच्छा, कसाई को निकालो और गडरिये को लाओ। ये जो भरवाड़ હતો, જે ગોવાળિયો, એને લેતા આવો કે। कसाई निकाला जाता है, गडरिया लाया जाता है। क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि आटલું મોટું ઘેટું હું કરવા વેચ્યું તે? महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई। भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया। मेरा कुछ कसूर नहीं कि महाराज હું શું કરું? આ બાજુ કોટવાલ સાહેબની સવારી આવતી હતી, ભીડ ભાડ હતી ને નાની મોટી કઈ આપું ઘેટું મને ખબર જ ના પડી। અમારો કોઈ ભૂલું નહીં। अच्छा, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी? महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। कुछ नहीं, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़कर ले जाते। जुओ, बीजा दृश्यમાં કોઈનો ગુનો અને કોઈને સજા, એટલે કોટવાલને કહેતા કે ચાલો ભાઈ તને હવે फांसी चढ़ाई दी है। अब देखिए तीसरा दृश्य। હવે ત્રીસરા દૃશ્યમાં શું છે? પેલા જે બે શિષ્યો હતા, નારાયણદાસ અને ગોવર્ધનદાસ, એમાં ગોવર્ધનદાસ તો ખાઈ ખાઈને તગડો થયો હતો। तो गोवर्धनदास बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धनदास मन ही मन में कहता है, गुरुजी ने हमको बेकार यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। उतने में 4 सिपाही 4 ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। चारे बाजूથી 4 સિપાહી એને પકડી લે છે। સિપાही કહે છે, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मज़ा मिलेगा। गोवर्धनदास तो घबरा जाता है। अरे यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? सिपाही कहता है, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की। इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। दुहाई परमेश्वर की। गोवर्धनदास तो एकदम चिंताમાં આવી ગયો। हे भगवानની સોગન, આ બધું શું થઈ ગયું? दुहाई परमेश्वर की। अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी आप कहाँ हो? गुरुजी आओ और मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धनदास चिल्लाता है। सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धनदास कहता है, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। सिपाही कहता है, चुप चुप रे,
राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? हाय, मैंने गुरुजी का कहना न माना, अब पछताता है। अब पछतावा आता है गोवर्धन दास जी को, करे उस दिन गुरुजी ने मुझे समझाया था, मैंने क्यों उसकी बात नहीं मानी। हाय, मैंने गुरुजी का कहना न माना, इसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी बचाओ, गुरुजी, गुरुजी बचाओ। तब महंत कहता है, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या स्थिति है? गोवर्धन दास हाथ जोड़कर कहता है, गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ। महंत, कोई चिंता नहीं। भौं चढ़ाकर, यानी कि मोढू चढ़ावीने सिपाहियों से, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। मारा शिष्य ने छेल्लो उपदेश आपो छे। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं कि देख, हूँ तने कहूँ ने एम तारे करवानुं। महंत कहता है, नहीं बच्चा नहीं, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दे, कि मुझे तुझे फांसी नहीं चढ़नी है, हमको पर चढ़ने दे, हमको फांसी चाहिए। इस प्रकार दोनों बहस करते हैं। दोनों एकबीजानी साथे जीभाजोड़ी करवामां लागी गया छे। सिपाही परस्पर चकित होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा कहता है, यह क्या गोलमाल है भाई? क्यों बहस हो रही है? सिपाही कहता है, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा। कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा कहता है गुरु से, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं? महंत कहता है, राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री बोलता है, ये बात है, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास कहता है, नहीं, हमको हुक्म है, हमको फांसी चढ़ना है, हम चढ़ेंगे। कोतवाल कहता है, हम लटकेंगे, हमारे कारण तो ये दीवार गिरी। राजा कहता है, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, तो हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं और पर्दा गिरता है। चुने हुए बाल एकांकी। तो विद्यार्थी मित्रों, अब बाल एकांकी जे छे एमांथी आ टकेशेर भाजी अने टकेशेर खाजा एनी वात करवामां आवी छे। तो आ जे कृति छे ए आ वर्ष पूरती तमारा अभ्यासक्रममां नथी, पण तमारे आ कृतिना शब्द अने अर्थ वांचवाना छे, એને તૈયાર પણ કરવાના છે, તો જેથી કરી તમારે ભવિષ્યની અંદર જ્યારે પણ આ પ્રકારનું કંઈ પણ લખવાનું આવે તો તમે લખી શકો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે કૃતિ છે એ કૃતિને અહીં આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ અને આવતી વખતે મહાકવિ કાલિદાસ કે જે આપણા અભ્યાસક્રમમાં છે એના વિશે જોઈશું। તો અહીં આપની રજા લઈએ। नमस्कार, खूब खूब आभार।